في الكلاستر يونيفرسيتي اسٹیبلش بے اعلان بس دیر کے اپنا گورنر صاحب پریس بریفنگ کی جان کونس یوزرس کی ہم نے لداخ میں ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کیا لے میں ذریعے شانا دوست بس سنگھتا ساگر تصفہ کی شاید گورنر صاحب جلد بازی تھی دی فیصلہ لے نہیں بس یہ کنسنٹریشن مفا دستنگتا ساگر تصفہ تھی اگر کلسٹر کالج کی ڈیمانڈ ان میں مین ڈیمانڈ پر فل فلیجڈ یونیورسٹی گورنمنٹ سینٹرل یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف نے قائم شدہ شانہ دقصہ کلسٹر یونیورسٹی تھا کلسٹر یونیورسٹی اور گراؤنڈ ریالٹی میں نمالتا کون فیصلہ چھ زربانہ دقصہ 5 کالج کا مشتمل کون نظر شانہ 5 کالج میں 3 کالج کو کرگل اور 2 کالج کو لے دے علاوہ اسٹوڈنٹ ریشو تھا نہ کتو اسٹوڈنٹ ریشو ہفتہ نہ کتو اسٹوڈنٹ ریشو بنسبت اللي كارجيلو انرولمنت من محمود چاہے ڈگری کالج ہیں چاہے نتی سٹیلائٹ کیمپس ہیں چاہے جن گاؤں مد نظر جس سے نتا نمبر تلفی شانا جو گاؤں سبق سے کامن پلیٹ نتا دک سے سر ڈسٹرکٹ کارگل بھاتی فیلڈ لگا دیا فرس منی نتا ہمیشہ ڈسکرمنیشن چل دے فیلڈ نتا آئندہ لها عمل بوگتا سے باتین کی بار گوشی دے فیلڈ نتا سخت لوگ سے گتو تی بات بہتر بیو نتا چیزن دیا منگا ٹھیک آرگنائزیشن ٹھیک ہے انگلیس بس گال لچ میں نتا سخت پلیٹ فارم ٹھیک ہے یوں سے سخت جوائنٹلی ایفرٹ بس فائٹ بس میں نتا نتی مقصد ٹھیک ہے لچا نہیں چانا دے فیلڈ نتا گزاری بس نتا سا دیگشکل زری نتا سا ارا نتا سا رائے نتا سخت لوگ سے یا گتو تی بس بنا زری زری نتا ٹھیک ہے نتا سا تکلیف تا سے مہربانی چانا ڈسکشن فیلڈ اوپن بنا کی مہربانی بسم اللہ بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمرت البلدان بحب الأوطان وصلنا الله كوسري والله جناب ناصر صاحب بابا صاحب دنگام موجودمو دي مصداق للموجين كنت برگزار رسمي قومی مفاد قومی ضروریات مد نظر سے سیاسی ذمہ داروں اور مذہبی ذمہ داروں سماجی ذمہ داروں گامس برایوکس نیم کھورے قومر گلوکس بار گوشائی دو دیگه کونسل کھورس تمام پارٹی امان جمع بس بھی انتا بہت شکریہ امام خمینی مدرسے طرفنا نا امام خمینی مدرسے طرفنا زين گا قوم چی ترتیب گا قوم چی یرگسبو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی و ہر بار کلام حسابی کا امرت البلدان بحب الاوطان یولن سکشن لو یلمیونی گالوکسکا محبت نا آپسی بھائی چارگی کا سونا سو زوم سے برک سے سونا سو تھیک سے کھورے جگہ چی کا دم سن اور جانیوانس برا چی انکھان اس برے کا گمس فلوک بسیں تمچک کھچک بسیں زیرنا دو بڑا دلچین گامنی کھے کا نبی اندو دخصان اور گامنی دا سوچ آئین حقیقت بھی ہی ہے کہ ناتنگ ارگیابا لوس پہ علت بخوران ناتنگ سون رسی سپیرو اختلاف نسپکا یہاں چیز یہاں چیز یہاں چیز یہاں چیز زسپکا ناتی کرگل پو ناتی لدہ پو ناتی سکیت ناتی آبا و اجدادی سکیت یہاں سکی من دیولا تدروس بسے ناتیز محبت جگ سے ناتنگ سون رسو گریک سے چھم سے اسپیرا چک چک گا فیوکس نیونا ان میں اسپیرا گمز فیوکس بنا گمز ان زیرنا لیکن ترقی اونچا دوپا ارگیس اونچا دوپا درینگی دی مسئلہ کی یونیورسٹی مسئلہ اینا سوٹا یونیورسٹی سوٹے فل فلیج یونیورسٹی سوٹے کلسٹر یونیورسٹی میتا سیتا تو سے لیا تنچا شوڑا ایشو جب چکا ساسم اگر موبائل پر سوٹ پانا تو معمولی چیز کو سے پوانجسوں دو چیز بسے یعنی کہ قیقات کا دو چوز پانا چوشیسوں لیکن آئیوں سے کہ ناتا ہمیشہ نظرانس میں نیوت کرگل لے ڈسٹرک حساب کا چیز چھوڑگا چیز چاہے برائے نام تو چاہے حقیقت کا تو کھیل لگا چاہے اور دیگر اللہ دا ہمیں بھی واسطہ درسا بلکہ باہر یلو نے آنو شہروں نے آنو دا خزے مانا جانا لیو میں مانا نقشے کا نسکیا بھی کوشش بچہ سن یہ دے فرس امکان سن ماتاں سن اسو ماتاں ماتی پارٹیوں کھپچے سن سے چاہے مذہبی پارٹی چاہے سیاسی پارٹی چاہے دون کھپچے سن سے یہ بچے کہتے مانا رضا محسوس برگا فلان پزر سریک دیں سے نا سن اسی کا
खदरिल दमद्रिल मन मासूम बजे का इस पर चंदू लिहाजा आइंदा बेदार सो से वाकन दूसरी चीजों ने कटे दिल खदरिल छार हो शतो ताकि स्पेरो चिक चिक बस मोनी लेचा तो शिते लेचा गवर्नर इन्ना सेंटर गवर्नमेंट गांगी शिते आदि जनरल सर से सांसिक नता मांग न डिमांड लुसियो माने सब वसन गंगमा निवा वसन सल्पो जरूरत इन चीज को जोजा टने मजहबी वो भी से जरचा की बिल्कुल जोजे डर अच्छा माने निरोस जबकि तमाम योंटन गामा गाड़ियों गामा जब जरिए माज सबतुन गामा मियोन गामा दाlam posdulen yoten chigang mergoz verchana haskia yang budnari yang dalam pokatu dignary suz istifada bachin और due to चीज़ात को नामा छचमें जब तक नदस आपसे सुनने दो बच्चा खफोक तंफो मामो तंसने आतंग सुशुन सुसु थ्रेस्टोरिया ने लेसे चुकंदू दिल सुनी का पाबंदी सों से आतंग गंगा बेदारी ने यंबो अल्हम्दुलिल्लाह मक्सद कौंसली का आतंग चुनचित उम्मीद और भरोसा चंदू की जवान तबकात इस लगा लेंसेट कौंसिल को जिम्मेदारी लेंसेट और काबिल तालीम याफ्ता पुरकार फ़आल अफराद अजस सीसी सादी खदमत लबे जगह रशद एंटी करप्शन मामले जगह सीसी को लगा चल इस पर जिसमें एंटी का उम्मीद है इंशाल्लाह दूसरों सोलह सुन आगे खेरे बचाइन कौम कबीले में ना अति दूसरे में ना बहुत नचीसी तना यंता ममनून और मशहूर मचानी का यंता ना भरपूर हिमायत और ताउनी का कीमती गारे के हिमायत चिरगोसना मचान तैयार हो कंसोली कयाते अनु मचान बिंगी आमादगी और तैयारी हो इंशाल्लाह यंता बहुत बहुत शुक्रिया और आइंदा हम दूसरे सिगा आता तमाम पार्टी सुनगामा चेक से बिंगी कोशिश करते أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب زكيتو ناصر صاحب آوا صاحب ذاکر صاحب اور جو تشریف باقی سیاسی سماجی مذہبی تمام شخصیات ہنگامہ یا مدرسہ اسلامیہ انجمن جمعیت العلماء طرفنا کی بالخصوص کونسل ممبر کن لکی انتدی میٹنگ کو شخص بات پہ بہت بہت شکریہ یا باقی دی مسئلہ وطن گامار خصوصا کلسٹر یونیورسٹی یا گورنر صاحب اس گچوک بیان چیتا سی بہرحال چلو لے فرستان سنہ فرانس پرا یا کرگل ملنا یا تس شخصیات یا چھو شخصیات یا پریمین اس پریسے فالوف باسے کرگل ملنا کیومر گوز یا دو لدہ خطے گوئے کا گاتو تانسینا دیکھا اوبیکشن چھار گوز وادی کا گورنر صاحبان لسپرات آمار گوز کی دو چی بستان سین زر بکاو جانا چوخلا درے صورت کی 300 بیٹ یعنی ہسپتال یا لیا تانسید زرے بارمین میں چھوڑ گاما دی مینا یا بارپوز گاتز اوبجیکشن بار گوشازین وادی فرز گاما بینمر گوشازین چاہے سیاسی دو سماجی چاہے مذہبی تمام گاما دی گاتا چک چھار گوشازین وہاں چاہاں مدرسے اسنا شریعہ کرگیلان کی دولی کا تعاون تامویت پاو بارپور مانا نمبوید ینتانا نمبوید ہمیشہ چی مردد گوشاینا یا گاتوک چیزا چیر گوشازین نانگاچے سان ہمیشہ تانچا سین مدرسان تانچائین و دی فرسان اچھے سان دلی پورا ہرتال جاسے بارپور انشاءاللہ دی بارینو ینتان کنسول پانی سان دیکھا ایشل لینے و گاتوک چیزا چی بار گوشادنا گاتوک اقدام چی بار گوشادنا دولی گیانو ناتا ضروری سونسین یا دیکھا فلوس بار گوشازین کوشش بار گوشازین اتی ترقیاتی مینا یا مخاتی مینا لی گیانو نا دو لی گیانو نا ضروری سونسین وانگا چان سان دیان ساتھ تامایتی مینا تعام تامایتی مینا ہمیشہ یانتان ایمو ساتھ دیو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Narrating si Executive Controller Sahib Baki yang syutani siyasi masali tanzimi Sahib Baki sekitar nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time mama malen ma nga as a counselor ni dari Anjuman Shahr Zamani representative hesaba Sheikh Sahibanismus Islamia Sukulna IKMT batuna ngacang Anjuman Shahr Zamani taraf na yang mamu time malen na bocor halat ci Kargil sonsna deke Bharpur Anjuman Shahr Zamani chairman taraf na ngati tanzimi taraf ni anta town injustice لہذا آگے بھی گوچ سٹیپ چلنا انجمن صاحب زمان ینتے میلہ تیاری ہو تھینک یو ویری مچ شکریہ جناب السلام علیکم جناب علی مسئلہ غتن گاما
jama ni song harda मगर सबसे पहले की तजवीज़ प्रगुइन ngates ngatang gami taraf na एक मेमोरेंडम जो से पूरे हर पार्टी हर समाजी ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर साहब बिशितियासों से इन्हें का ब्रीफिंग चिता संगत बाकी लास्ट बात पोंगा मुश्किल चीज़ है लिहाजा नी तजवीज़ इन यंतंग कौंसल की तरफ ना यंतेस दिया नु मीटिंग बच्चे क्लोज पे बहुत लाख शुक्रिया मगर सबसे पहले ngates susu chachen na yante sangdia taun ta moshi ngacha tayar ngachi sadir taraf na ngachi anjuman taraf na representative basin gamal che gacha gos na ngacha cha tayar yo mali taun tayar yo jani taun tayar yo har lihaz ngacha yanta na sadin magar meherbani yanta pe active cha gos सबसे पहला यंता एक्टिव सो से मैं बाकी सो एक्टिव था जमींदु लिहाजा यंतेस गता है अमल मुरत्तब बचिना दिन लाए अमल को मुरत्तब बसेस न लगातेस या मेमोरेंडम जिसको से पूरे गवर्नर ला प्रेजेंटेशन था मोगो से निर्देश करना था 10 बागो सर 2-3 महीने हो गए कि हम जैसे सिमो में यूनिवर्सिटी के लिए कि 2 फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी हम अपने लद्दाख में चाहते थे 2 फ्लेजेड यूनिवर्सिटी यानी कि 2 एक लद्दाख के लिए और एक करगिल के लिए एक करगिल के लिए और एक लेह के लिए सॉरी फिर सर 2-3 महीनों से हम इसकी फाइट करते आ रहे हैं और अभी हम जाके देखते हैं कि यूनिवर्सिटी दिया हुआ है उन्होंने क्लस्टर एक यूनिवर्सिटी दिया हुआ है जो लेह के लिए दिया हुआ है हम ये नहीं कहते कि सर मतलब लेह के लिए क्यों दिया हम ये नहीं कहते हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो लोग लेह के लिए भी दें और हमारे लिए भी दें हम भी अगर ज़्यादा जेन्युइनली देखा जाए तो यहाँ पे हमारे करगिल में है स्टूडेंट का रेशियो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे है जेन्युइनली अगर देखा जाए तो सर यही चाहते हैं हम लोग कि आप लोग सब हमारे साथ कोऑपरेट हो जाए और यहाँ पे भी ज़्यादातर हम लड़कियाँ जो है बाहर जा नहीं पाते हैं बाहर हायर एजुकेशन ले नहीं पाते हैं मैं अपने एज अ गर्ल मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए हम भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए ना कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी तो जैसा कि आप सब यहाँ पे जमा हुए हो और इसी मकसद के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं जैसा आप लोग चाहोगे जैसा आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करोगे हम भी आपके साथ कोऑपरेट है उनको जैसा डिसीजन हो और सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और हमारे काउंसलर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं स्मोक का केशियर के पे काम कर रहा हूँ स्मोक में तो जैसे आपको पता है सर हम पिछले 4 साल पहले 2014 में भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था यूनिवर्सिटी को लेकर और ये जो मूवमेंट ये लद्दाख यूनिवर्सिटी मूवमेंट सबसे पहले स्मोक ने करगिल से स्टार्ट किया था लेकिन उस टाइम हमारे आवाज़ क्यों दब गया था क्योंकि उस टाइम हमारे जो वॉइस है वो हम अकेले करगिल में एक यूनियन ही उसको उठा रहे थे इसलिए वो दब रहे थे अभी इस चीज़ को 2 महीना पहले हाईलाइट हुआ वो इसीलिए हुआ कि हमारे लद्दाख रीजन के सारे यूनियन सारे ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक इसी लद्दाख यूनिवर्सिटी की इशू के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं तो इस चीज़ को ये इसीलिए हाईलाइट हुआ तो हमारा भी ये माँ बिल्कुल नहीं था हम यहाँ पे लद्दाख के लिए यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुए थे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के हम डिमांड कर रहे थे तो अभी पता नहीं किस तरह से ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी ले में दिया है और करगिल का तो वहाँ पे हमारे गवर्नर साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें तो नाम नहीं ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करता हूँ सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी वैसे ये रूसा एक स्कीम है वो उसकी तहत आता है लेकिन जो जिस तरह से हम श्रीनगर में हमारे जो श्रीनगर में हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर है तो उसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो कैंपस होते हैं तो स्ट्रीम अलग स्ट्रीम का जो कैंपस होते हैं वो कॉलेजों में डिवाइड हुए होते हैं जिस तरह से श्रीनगर में हम देखें सर उसके हिसाब से श्रीनगर का जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है उसमें उसके अंदर जो 5 कॉलेजेस पूरा ये किया हुआ है सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर दिया हुआ है तो उसमें इस तरह से दिया हुआ है जो जैसे कि अमर सिंह कॉलेज में आर्ट्स कैंपस दिया हुआ है अलग से उसी तरह से जो एसपी कॉलेज में साइंस कैंपस दिया हुआ है उसी तरह से बीमना कॉलेज में कॉमर्स कैंपस दिया हुआ है और कॉलेज ऑफ एजुकेशन में और एजुकेशन कैंपस दिया हुआ है और वुमेंस कॉलेज में वुमेंस कैंपस दिया हुआ है उसी तरह अगर यहाँ पर भी ले में जब लद्दाख रीजन के लिए हमारे यहाँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी दिया है तो रिसेंटली हमारे तो कॉलेज बहुत नुब्रा में जांस्कार में तो पूरा ओबियसली यहाँ पर भी डिवाइड होगा उसकी रूल के तहत तो डिवाइड होगा तो हम ये डायरेक्टली हो सकते हैं कि जांस्कार में वो कुछ कैंपस दें या नुब्रा में भी कोई कैंपस दें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर नुब्रा के बच्चे आके जांस्कार में पढ़े कोई अगर आर्ट्स का स्ट्रीम अगर नुब्रा में देखे तो जांस्कार के बच्चे जाके नुब्रा में नहीं पढ़ सकते हैं तो इसलिए
یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں سر. تو پتہ نہیں گورنر صاحب نے کس طرح سے ہمارے بھی یہ نہیں تھا. تو کل آج تھا انفارچونیٹلی گورنر صاحب کے ساتھ ہمارا اسٹوڈنٹس کا جو ہمارے باہر جو ہمارے اسٹوڈنٹ یونین سے اور ہمارے سمو کا بھی ممبر سے سر اور گورنر صاحب کے ساتھ آج ہی ہم نے اپوائنٹمنٹ رکھا تھا. تو انفارچونیٹلی وہ کینسل ہو چکا ہے. تو کل رکھا ہوا ہے. تو کل ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے باہر کا جو جو دہلی اور ہمارے سمو کا بھی کچھ ممبرس ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن ہے سر. تو وہ بھی اسی کے اوپر کنڈیم کریں گے کہ یہ لداخ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر اس کو کس طرح سے جیسے یا لے میں. تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں سر جتنا کارگل کی کالجوں میں انرولمنٹ ہے اتنا لے میں نہیں ہے. ہمارے کالج ڈائریکٹلی دیکھنے کو ملتا ہے سر 3000 سے بھی زیادہ ہمارے کالج میں انرولمنٹ ہوتا ہے. اور دراز میں بھی 1700-1200 کے اوپر دراز میں انرولمنٹ اور زانسکار میں بہت سارے انرولمنٹ ہے. جتنا لے کالج اور نبرا کالج میں اتنا انرولمنٹ نہیں ہے. اور سٹیلائٹ کے پاس بھی وہاں پر فنکشنیبل نہیں ہے جتنا کارگل کا ہمارا سٹیلائٹ کے پاس ابھی فنکشنیبل ہے. تو اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے اور اس سے پہلے جو ہمارے سموک نے بہت سارے اس کے ایکٹیویٹیز کی تھی سر. تو پلیز آپ بھی اگر کوآپریٹ کیے ہم سب اگر ایک یونائٹ ہو کے ہم سب ایک اس چیز کو اگر نہیں اٹھائیں گے افسوس ہوتا ہے ہمیں بھی یار. آج تک ہم لوگ کیا کر رہے تھے سارے لداخ سیکورٹ کا ارینجمنٹ ریجنل وائز ہمارا کوئی بھی جو ہیڈ کوارٹر کارگل میں نہیں ہے. کیا کر رہے تھے آج تک ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو ہم سب کو مل کے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اٹھانے کی ضرورت ہے سر. پلیز میں آپ خصوصاً ہمارے کونسل والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ آگے جائیں اور آپ کے پیچھے ہم سب کھڑے ہیں. پلیز آپ اس ایشو کو ہاتھ سے جانے مت دیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ اسٹرگل ہوگا کوئی فرق نہیں ہے. اگر سینئر میں ہوگا لے میں ہوگا تو کوئی فرق نہیں ہے. اس سے پہلے ہمارے سول کے پریزیڈنٹ جو ہمارے لے میں اسٹوڈنٹ یونین ہے سر اس سے بھی میرے بات ہوئے تھے. تو ہمارے کوئی پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سے اندر سے کچھ کیا ہے کہ نہیں. اس سے پہلے ہمارا کوئی یہ وینیو ہمارا ڈیسائڈ نہیں تھا کہ یہ یہاں پہ دیا جائے گا سر. تو پلیز آپ آگے کیجیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو آگے اٹھانے کے لیے. خاص کر ہمارے ریلیجس جو ہمارے ادارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ لوگوں کے پاس مین پاور ہے. پلیز آپ لوگ اس ایشو کو کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں سر ہم کئی بھی یونین کی طرف سے کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے چاہے ریلیجس ہو چاہے پولیٹیکل ہو ایجوکیشن کے اوپر کسی کا بھی اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. تھوڑا ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن کے اوپر آپ لوگ اپنا دھیان دے دیجیے اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم. باقی ہم آپ کے ساتھ Dengan kata konsel sekretari na nasir masih kondoni gocet na dengan kata executive consular sumkong gocet dengan kata mazhabi sosonas ketkani tuzmi sama dengan kata protokol sosonas ketkani tuzmi sama dengan source dengan kata Kargili University sekolah dengan kata sama source naju dengan aja bot karbi nga bot karbu nain nyemi askar madabu zerchan dengan bodi zerchan ajang lena nyampo Tene yonsen agent le dans tirant tene smart chan zat ne pasana tene comment c'est spera zercha da bardo tout tene nga nyampo konsen ju konen po tene ma ngatan sangma dring na chigdil skyote tushas po ma sin tapon sangma tashir belajui tene dona nyampo tene ngatan rasan university jigindo ya chi jigindo mangindo tene ngajang bodis shishan tene nyampo duchasi rewatuen mar ngajang Diman kachi juste te samme ka tuzna salamindo ngeja mazhabi tanzimindo ya ngeja political tanzimindo tene ngaja nani ngeja stone la ngata delhi na ngata dineshwar sharma skyotsana tendika meeting about skyot zere exemple ike tsupin tende na yan tabi meeting son setene ngati las manduk dena tuspa nyancha minduk zere kon tus matup tene chia zerna achar muddek jasepin tene ngaja Kargil ngaja sakyat chilusan mana palla tene ngata de sakyat pola sai ngata ngedan thangma thugi zeno tene kuchek din dukse tene ngaja nanin chik dekana ngaja thangma tene de sakyat po chere na san la mana Ladakh gangpe bodisi ina samet pin de sakyat po ten jomma da san district Kargil botoni me ngata station se kar district po station se na palla district Kargil paani botoni me ha chamin duk pin de sakyat pika tene detana mir gatpon la samba met pa fonz de la Ladakh gangpe sakyat dina sam se le pon che shen do se chon la ata le pon shechas po le bodis sa sam shechas pika na dikpamin du zare na ni lo ni sum china palla ten du ngata Kargil district yot khane botoni nyara chogo sok mane molenda tende kana pala ngacha ngeja sama tene islamic supporting lo ya tazindo ngeja sama ngaje abale tsorzin acho tsorzin ngaja no tsorzin ngeja nyampo ngaja thit gosen laktut tamse te ngaje juwa denain ki ngaja chi dina taklif chi duk taklif chi chetna ngeja mazig ngaja suzikshan
ngacha le piga ro cho se ngacha phutet ngacha zignari ngacha chang le chona ngacha yang financially support yang chi support chang yang semet financially support na ngache uske mi ka bank account yo do tene khonte na yenta zignari ngacha account mana zero da san financially mana ngache thona le bode decision la kargili tene dos ke pasana tene de unikam tuznan zate samba sarvasha khachandu chiazana da sanga chamas bur chendu center na mix choto do state na mix choto khija boton la chithon sidina kargina duk takalip chi met zerna majaz met zerupa met zerna hos pana majaz hos pana chi takalip chi duk hale tene ngata dina ya minority ngaja ino district kargina na minority phi ngaja ngeja suksam sarvasha do minority na ngaja kote thopcha na ngajiri kotari chi sal na ngaja tu sa admission ji ndo nokari indo dena ngaja kota sarvasha khachandu samna chi chi shena ngaja minority thoptang thopchu pagos ngeja sangmas tene ngaja yang janma daksana ngaja jusain ngaja lepana talok ja chamen ngaja kargila gosguse dukchan kargila pangeja sama achetsulla abetsulla acha gosguchan mar kerena ngaja nyambo ngeja sama katukna sal bazar tene ngaja nanin kerena sama khatak sal yuwa puspin de kadarun sapanya lo ni shakisyo tele sanna konsol kacho sa FCC juksyo tana kacho sa bazes pawadi saksamo met pakinta plan bas pistan bas zerno samoyod named naspera po zango nangan pa nang chagos le dun la halal sperek ata jek lep pana pala dol zang chi nyanta zanga chi salet do ata dring sokpe nang norege nang bakin tan nyan program mona koram ata sir po sang yang ju cha ma so haju yancha na be do thap chi chi yancha do jik zik par ngacha nyanta ma de jage ka taklif chen nyanta yang sambek sam chi sab zera ngacha jua puspin sangma tanzin political sangma ngacha khatas phule ngacha sangma ngacha jua juspin tende le sankan ti darun sapama tene ngacha dang jira yang meeting so se konsal soma tene ngata as kuna bot karbuna do sangma chon se miun aga post ka sipane ngembo chejadina kharji warji chinta khona ngembo digen pozere ngacha san la chat ni jale chang ngacha do sa chang metin de ni ja sangma sang thukje jikse ngaje lazoni kan thuknang zat par gosa khachandu dene ngacha sangma thukje chejut ngaje chona yang chitong juste na inta porchas galcha jisan mana yang ajani juste na de sangma ngacha response vit 만만한 아까 지도도 농이랑 레는 게인데 바나 정말 대단한 지진님이 어떤 미라고 붙송 지진대잖아 가려가 저건 바로 셔들이 사고는 빼빼만단 도사가 절텐도 가람고 건 바가라니 가다디가 내가 자 독사강지 베스파강지가 자 직접 벌고 저쪽 벌고 가족지 잡는 게 대사 벌고 대단한 미니 치즈 아타 아폰 샤드 레피디가 독사 스위덴게 두 원파가린 독사 다산가티 가오 데타나노 덤버리요다 핀제라 미시네디가 로샤사 메핀축 자사 메핀축 데 마부리산 데스피나 다산나가타 창데 가르긴 디치 모톤나 창 곤타 데삼 제자 메디가 베스칸칭가 차티 주파마나 자르리요 저 가조 사치가 얀테 살우 데나 가조 사치가 타무 데칸 보다산가치 나니 사키아티가 도카날 나치 사키아토 데나 아트카나 아트말라우 니온 라메 소동야나 비시네리 chana ngacha don ngacha zik zere ngacha har jagah tangsin yan tang perang ni sum tangsin kya di den da yon sena जिले की शर्मा यहाँ पे तमाम आए हुए सब मिल के अगर हम करगिल के लिए सोचेंगे कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं स्मॉग का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कदम 3 महीने पहले से लड़ रहा है। हम हमेशा इलेक्शन कमेटी प्रेसिडेंट होने के खातिर इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा इनके साथ जहाँ भी जाना पड़े इनके साथ और कौंसल के साथ जो आज ये प्रोग्राम इनकार किए, जहाँ पे फैसला होगा हमारे करगिल के डेवलपमेंट के लिए जो भी इश्यूज होगा, मैं श्योरिटी देता हूँ, इंश्योर देता हूँ कि यूथ एक्शन कमेटी हमेशा आप लोगों के आगे ही होगा। थैंक यू सो मच। और भी हमारे के हमारा पाकिस्तान और हाँ जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उन सबको मैं राज मोहम्मद प्रेसिडेंट रशिया मिस्टर कलील पसंद करता हूँ और आप सबको सलाम करता हूँ। इस बार इस इम्पोर्टेंट इशू पे हमारे कौंसल के सीसी फेरोज खान साहब ने जो ये मीटिंग बुलाया गया है वो बहुत इज्जत का हामिल है। इसमें जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट आए हैं उन सबका एक जोश है, जज्बा है, खुश है। तो मैं भी आपको बहसत एक नुमाइंदा के
ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बनिस्बत इसके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेह के जितने भी नुमाइंदे हों वो हर नेक काम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। वो मुझे इससे मालूम होता है कि हमारा संस्कार जो हमारा एक पार्ट है डिस्ट्रिक्ट का, हमारे संस्कार की मुश्किलात को सामने रखकर एक खैर काम, एक नेक काम के तौर पर बासियत नेक काम के उन्होंने लेके साथ जोड़ दिया। ये एक नेक काम है, ये एक अच्छी बात है। तो ये मैं समझता हूँ उनकी एक नेक और काफी बनिस्बत इसके कि हमारा नुबरा के साथ तो इस नेक काम में हमारा भी डोनेशन होना चाहिए, हमारे भी ख्याल होनी चाहिए, ताकि उन दूर दराज जहाँ मुस्लिम भी हैं, जहाँ बौद्ध भी हैं, 200 किलोमीटर ले से और करगिल से 400 किलोमीटर की दूरी पर वो यहाँ से आकर श्रीनगर जाते हैं। तो लिहाजा इस नेक काम में हम पीछे हैं, क्योंकि अगर हमारे ले वालों ने, डिस्ट्रिक्ट ले ने इसको ट्रांसफर किया है, तो अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे खुदादाद, उनके पास माल है, जायदाद है, सब कुछ है। अगर एक दिन एक जिप्सी और एक टिपर अगर उनको डोनेट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये नेक काम जो है वो हमसे भी हो सकता है। लिहाजा मैं आज के इस इशू पे यही समझता हूँ कि ये एक कारखीर है जिसमें हमें हत्तुल इम्कान जिस तरह से भी हो सके हमें हमारे सीसी साहब और इनके आकीन का और जितने भी हमारे ये मजहबी और जितने भी नुमाइंदे हैं सब मिल के हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए। और ये खुसूसन इस हमारे यूथ ने बता दिया कि ये तालीमी मैदान का एक बहुत बड़ा हमारे पास इशू है, जबकि ये इशू जो है इससे पहले हमारे समूह ने इनको उठाया और हमें जगा दिया और हमने काम किया। उस दिन कौंसल में भी ये बात हो चुकी थी। तो अभी तो हम काम ही कर रहे थे, हमारे कुछ ख्वाब थे कि हम इसको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उससे पहले ही गवर्नर साहब ने इनको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तौर पर जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। तो हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जैसे कि इस जवान ने हमें समझा दिया कि ये क्लस्टर ड्यूटी जो है इसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये 5 को कवर करेगा, 5 कॉलेज को कवर करेगा। तो 5 कॉलेज को कैसे मुमकिन है कि वो कवर करेगा? तो ये तो अभी हमें हमारे समझ में या मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है कि भाई कैसे कवर कर रहा है इसको। तो इसको कवर अप करने के लिए तो या तो डिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। वो तो इससे तो हम श्रीनगर से ज्यादा नजदीक में है। लिहाजा ये मसला जो है वो हम सबको मिलकर, अगर क्लस्टर वहां दिया है तो हम तो ये चाहते थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख चाहते थे। अभी तो इन्होंने शायद, जैसे कि हमारे शेख ने फरमाया, जब कोई बाप जो है वो बड़ा चीज मांगता है तो एक छोटा चीज मांग के उसको बच्चे को बहला देते हैं। यही हमारे साथ भी हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस बहलावे पे नहीं बैठेंगे, हम इस बहलावे पे नहीं बढ़ेंगे। ले को क्लस्टर दिया तो बस हमारा सब कुछ हो गया, नहीं, ले को क्लस्टर दीजिए, लेकिन हमें जो है वो हम इसको फाइट करेंगे कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। हम इसमें हमें फाइट करने की जरूरत है। ये क्लस्टर जो है ये समझो 5 अभी दिखावे के लिए दिया गया, तो हमें जितना भी मुमकिन हो सके, यानी हमारे ये लोकेशन जो है, हमारे एनवायरनमेंट जो है, ये सब कुछ हमें ये बता देता है कि करगिल जो है वो इसके लिए मुस्तहक है। तो लिहाजा हमें चाहिए हम इसमें एकजुट होकर मिलकर, चाहे आगा साहब ने कहा कि एक यानी रेजोल्यूशन पास करके, चाहे दूसरे, अगर हम सबको जाना पड़े, मैं सीसी साहब का और इसके अराकीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सब जब भी चाहे, जिसे भी चाहे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है इस सिलसिले में। और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सिर्फ ज़बानी बात करके नहीं, बल्कि अमली तौर पर काम करके इसको जहाँ तक हमसे हो सके इंशाअल्लाह ताला हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करना है वो हमारे अपने कौम का मसला है। बाकी जो रहा सवाल, ये जो अभी यूनिवर्सिटी जो लेह में चला गया, ये हमारे नेताओं का, ये हमारे लीडरों का, ये उनको शेम की बात है। उनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी जो है वो लेह चला गया। ये करगिल के पब्लिक का नहीं है गलती, ये स्टूडेंट यूनियन का गलती नहीं है कि लेह में यूनिवर्सिटी किया। कि लेह में यूनिवर्सिटी किया तो हमने हमेशा करगिल वालों को हमेशा जो है हड़ताल करना है। हमारा हक चला गया, हमारा हक चला गया। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो 100 ऐसे चीज़ें, 100 ऐसे एजेंसी से, लद्दाख सिकोट को ले लो, या चाहे जैन ऑयल को ले लो, या हमारे दुकानदारों के एजेंसीज को ले लो,
50 ऐसे एजेंसी से जो करगिल का हक जो है ले में गया है। हमें यहाँ बुद्धिस्ट मुस्लिम नहीं खेलना है, हमें यहाँ अपना हक चाहिए। अगर अपना हक लेना है तो IKMT और ट्रस्ट या बुद्धिस्ट एसोसिएशन या NC कांग्रेस PDP अपने पार्टी के लिए आदमी तोड़ने के लिए इनके पास हजारों उनके पास ये है, आदमी तोड़ते यही करगिल में यही सियासत खेलते खेलते आए हैं। इसी में इनको जीत और इसी में इनको सेटिस्फाई मिलता है। करगिल के मफाद के लिए कोई आगे नहीं आएगा, कोई करेगा नहीं। अगर पार्टी वाइज अगर किसी को अगर मफाद के लिए अगर उनका पार्टी स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा तो जान तक देगा ये लोग। लिहाजा ये सारा अभी हमारा करमलाई साहब कहाँ है, नया साहब कहाँ है, हमारा CC साहब कहाँ है, कहीं अगर बाहर कंट्री में कहीं कोई मसला हो जाता है करगिल पूरा बंद हो जाता है। अपने हक के लिए हम लोगों को पता ही नहीं है। इससे पहले भी हमारे ऊपर बहुत सारे करगिल का जो हक है वो लेह में चला गया है। कौन सा किसने क्या किया? अगर यहाँ यूनिटी होगा तो दुकानदार यूनियन साथ है। अगर ये यूनियन ये स्टूडेंट यूनियन बताएंगे हम करने के लिए तैयार है, और करगिल के ये पार्टी बोलेगा हम इसके लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट यूनियन बोलेगा हमें हड़ताल करो, हम करने के लिए तैयार है। करगिल का अगर पार्टी यूनिट हो के अगर बोलेगा हम हड़ताल करेंगे, नहीं तो हम हड़ताल नहीं करेंगे। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव साहिबान, अति मजहबी इदारा हेड कौन, बाकी पॉलिटिकल हेड कौन, स्टूडेंट यूनियन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आसिफ मुंशी और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स को मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, कम से कम एक इश्यूज़ पे सारे जो करगिल के पॉलिटिकल, रिलीजियस या समाजी तंजीमों को इकट्ठा होने का एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने आज दिया है, उसके लिए उनका बहुत मशकूर है। यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, हम सबको मालूम है और अभी यहाँ पर ब्रीफली हमारे स्टूडेंट यूनियन के बच्चों ने हमें बताया कि एक फुल फ्लेज जो यूनिवर्सिटी हमने मांगा था उसकी जगह पर एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी दिया, और उस क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे लिए क्या साबित है उन्होंने हमें तफसील से बताया। ये लेह में जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी दिया है, अगर इसके अंडर अगर करगिल को भी रखा जाएगा तो पहले जो हमारे जो सिस्टम चल रहा था उससे भी बदतर जो है, क्योंकि हमने हमारे करगिल के हमारे बच्चियों के फैसिलिटीज़ के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनको आगे तालीमी मयार को आगे बढ़ाने के लिए हमने यूनिवर्सिटी का डिमांड किया था। तो इस क्लस्टर की वजह से तो मेरा ख्याल था उसे हम लोग नुकसान ले रहे हैं पीछे। इससे तो बेहतर है हमारा डिमांड होना चाहिए, हमें जैसे थे मेहरबानी करके वैसे ही रखो। कश्मीर यूनिवर्सिटी का ठीक है, हम ले का हम अपोज नहीं करेंगे, ले को दिया, हमें भी दिया। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं से ये देने वाला कोई ये नहीं है, ये तो आपका स्टेट गवर्नर खुद का लिए अनाउंस कर सकते हैं एक और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। तो हमारा डिमांड यही होना चाहिए कि हमें भाई करगिल के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज, अगर नहीं दे तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी अगर देना है तो करगिल के लिए। अब इसको आगे हम इस मूवमेंट को आगे कैसे ले जाएं, इसमें मैं अपना ज़ाती में यही मेरा ये है कि दी खाक वो IKMT ना इस्लामी स्कूल इस कुर्बान आगे इसको ले जाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आता साफ आता है करगिल में ज़्यादा क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंशियल चलता है। क्रेडिट पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल जितने भी पार्टी है हम तैयार है आपके साथ, जहाँ भी आप बोले, जहाँ जाने के लिए बोले, जहाँ बैठने के लिए बोले, हम तैयार है। मगर अच्छी गुजारिश पर दिया है कि आज कौंसिल ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा नक्शा हम तैयार करें, वो नक्शा जो है IKMT और इस्लामिया स्कूल के उसमें आइंदा जो है जो भी ये होगा इनके अगर इनके तहत अगर चला है फिर पार्टी सब इनके साथ, ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, मौका है। मैं तो कहता हूँ एक अच्छा आप लोग IKMT और इस्लामी स्कूल के अंडर बैठ के एक कमेटी एक तश्कील दे दो, उसमें अच्छे लोगों, ये नहीं ये मत देखो कि इस पार्टी से कितने लोग हैं, इस पार्टी से कितने लोग हैं, अच्छे लोगों का एक कमेटी बनाओ, फिर एक अच्छा से एक रोड मैप बना के तरीके से ये जो हमारा जो एहतिजाज जो है आगे तक हमें पहुँचाने की ज़रूरत है। और मैं तो बोलता हूँ ये एक मौका एक ऐसा आया है कि और लोगों के अंडर में ये कमेटी एक जो है हमेशा के लिए एक कमेटी तश्कील दे जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी हमारा एक मसाइल है, हमारे अपने मसाइल साथी जो इनर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मसाले हैं वो चलता रहेगा। वो एक डेमोक्रेटिक का एक ये ऐसा है, कभी इलेक्शन आता है, कभी पार्टी इलेक्शन लड़ता है, वो चलते रहते हैं। मगर मेरा अपना मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इश्यूज़ है
उस इश्यूज में जब तक हम एक नहीं हो जाएगा, अभी तक इनका बात जो अभी 2-4 लोगों ने कहा, आज तक हम करगिल जो है पीछे क्यों रहा, ले आगे क्यों गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात इसी यूनिटी की बात है। हम सब एक हो के अगर एक आवाज़ में अगर हम लोग किसी चीज़ पे अगर हम आगे जाएंगे तो ये ना होने वाली बात नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये हमेशा से हम डिवाइड रहा है। तो मेरी गुजारिश खुसूसन हमारे मजहबी इदारों से और पॉलिटिकल जितने भी ये हमारे पार्टी से, उनसे ये गुजारिश है कि हमेशा इनकी आवाज़ पे, इनके उस पर लपेट रहने के हमको तैयार रहना चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के इश्यूज़ पे। बाकी हमारे अपने इश्यूज चलता रहे, वो तो हर करगिल में ही नहीं, हर उसमें ये चलता है। लिहाजा हमारे IKMT और इस्लामिक स्कूल से हमारी गुजारिश है कि इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा सा एक कमेटी आप लोग तश्कील दे दो, और इमीडिएटली हमको क्या करने में आज ही, वो ये नहीं कि हम कल कमेटी बनाए परसों कमेटी बनाए, आज ही इन सारे चीज़ों पर गौर करके कमेटी बना के इमीडिएटली हमने क्या करना है और आगे हमने क्या करना है उस चीज़ पे एक नक्शा तैयार करें। मैं अपने पार्टी की तरफ से यही कौंसिल को भी और मजहबी इदारों को भी हम यही विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, जिस किस्म की भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हम हमेशा तैयार हैं इंशाल्लाह। क्योंकि ये हमारा एक बेस है, आने वाला ये यूनिवर्सिटी देखो कल अनाउंस हो गया, लेकिन अभी हमारा ये डिविजनल स्टेटस का बात चल रहा है, कहीं बीच में फिर पता चले कि कोई गवर्नर ने अनाउंस किया ले के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी के मसले पर एक हमको एक अच्छा एक वो मिला है। तो इस चीज़ को अच्छा सा हम एहतजाज करके जो है इसको आगे बढ़ाना है। शुक्रिया। मजहबी तंजीम के सियासी तंजीम के सदर साहबान, स्टूडेंट्स, एजुकेशन मूवमेंट्स और बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब और यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त हर टाइम करगिल के मफाद के लिए, करगिल के आवाम के हित में उतरा है। तो आज हमारी पार्टी की तरफ से आज कौंसिल सेक्रेटरीट में कायम मुकाम से ज़ाती क़यादत में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज एक हमारे तमाम सियासी तंजीम और मजहबी इदारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी लद्दाख यूनिवर्सिटी की बात छिड़ी। बहुत ही आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे आप सब तशरीफ़ लाए। हम हमेशा करगिल के हित में, करगिल के अवाम के मफाद के लिए हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है, आगे भी हम रहेंगे। तो आज जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो ले के लिए अनाउंस हुई है, ले के लिए आप 2 और क्लस्टर यूनिवर्सिटी दे दो, हमें उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं है। आप बखुद अब इसमें खुसूसी ले के लिए अगर आपने प्रोवाइड किया है, जो रियासती काबीना जो हाल कल ही मंजूरी किया है, हमारी यही मुद्दा जो डिमांड हमारा है लद्दाख के नाम से है, तो ले और कारगिल का कोऑर्डिनेशन कमेटी मिल के इसमें फैसला करे कि इसका मरकज़ जो है वो ले में होगा या करगिल में होगा। आज तक जितने भी अभी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया, हम उनके बात से बहुत ही मुत्तफिक हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे लद्दाख में, ख़ासकर लद्दाख को लेके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी उसके हेड्स हैं, वो सारा लेह के लिए चला गया, कारगिल का कहीं जिक्र नहीं होता है। तो हमारी लद्दाख की जोग्राफिकल टोपोग्राफी को लेके हम ब्रीफली रियासती काबीना एक्सेलेंसी गवर्नर साहब के पास एक कमेटी हमारे कौंसिल की क़यादत में जाए, या हमारे पूरा एक टीम जो हाजी हनीफा साहब ने अभी बताया, एक तश्कील देके उन्हें ब्रीफली ये समझाना चाहिए कि हमें किस तरह लद्दाख में ले और कारगिल का नक्शा यहाँ पे क्या है। जो हक हमारा आज कारगिल का है, यहाँ पे हमारे कॉलेजों में वो एनरोलमेंट ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कॉलेज भी ज़्यादा है, तो ये ले की तरफ क्यों चला जाता है? क्या हर वक्त हर जो डिपार्टमेंट का हेड जो है ले के लिए क्यों चला जाता है? ये हमारी ही कमज़ोरी से जाता है। हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे के ऊपर सबकत हासिल करने के लिए हमने कभी हमारी डिस्ट्रिक्ट कारगिल को लेकर कभी नहीं सोचा, किसी पार्टी ने भी नहीं सोचा। सिर्फ अपना पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे आगे हो। हम ब्लॉकों में हर जगह 5 सरपंच इकट्ठे करने में जुटे हैं, लेकिन वहाँ से वो लोग ले वालों ने यूनिवर्सिटी अपने नाम कर लिए। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो मैं दिल से बहुत ही खुश हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म पे तो आए कि एक इशू को लेके
लिहाजा आज के बाद अभी यासीन साहब ने फरमाया एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सारा पार्टी सारा तंजीम के हेड्स चाहे बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, अहले सुन्नत वल जमात हो, स्टूडेंट्स मूवमेंट हो और सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक हो के हमारे करगिल के लिए हम सारे मतलब परस्त हो गए कि हमें क्या मिलेगा, हमारी पार्टी को कैसे बेनिफिट्स होगा, इस काम को लेके तभी हम आगे काम करेंगे। यही सोच के चले हैं आज तक। यही हमारा सबसे कमज़ोरी इसी से रहा है कि इसको लेकर हमारे पार्टी का कितना ग्रोथ होगा, इस काम को अगर करने से न करने से कितना नुकसान होगा। लेकिन इन सब को बालेता रखकर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर हम सब ने करगिल के लिए सोचना है, करगिल का तरक्की के लिए सोचना है। लिहाजा आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी माली जानी जैसा भी आप सब के लिए हमारा भी पूरा तंजीम तैयार है। हमारे चाहे मरकज़ में जाना पड़े, चाहे रसद में जाना पड़े, इस वक्त हमारा पूरा पार्टी आज की इस मीटिंग में आपके साथ है और हमेशा साथ देते रहेगा। कायम मुकाम सीसी नासिर मुंशी साहब, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साहिबान, उलमाए किराम, काउंसलर साहिबान और बाकी बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अहले सुन्नत वल जमात, स्टूडेंट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों से लोग यहाँ पे हाजिर हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हसास इशू को आप लोगों ने प्रायोरिटी देकर अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के अपना ज़ाती और अपने तंजीम का कंट्रीब्यूशन इस डिस्ट्रिक्ट के तईं देने के लिए आप लोग यहाँ पे हाजिर हुए। तो मैं पार्टी की तरफ से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि मुत्तफ़िक़ा तौर हर किसी ने अपना अपना इजहार ख्याल किया और इसमें किसी में हमें देखने को नहीं मिला कि कोई इख्तिलाफ़ात या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर कोई नाराज़गी हो या इत्तिफ़ाक़ी हो। तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। हाजी हनीफा साहब ने भी बिल्कुल एक अच्छा सजेशन दिया। साथ ही साथ हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यासीन साहब ने एक बहुत ही सही बात उन्होंने दिल से कहा कि अगर इन इश्यूज़ को जो हमारे पूरे करगिल खत्ते के लिए हो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, उन इश्यूज़ को अगर हम सब मिल के हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आइंदा आने वाला जनरेशन जो है सही रास्ते पे लाने में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करगिल की तामीर और तरक्की को हम यकीनी बना सकते हैं। लेकिन इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ काउंसिल को भी कि उन्होंने एक ज़िम्मेदारी का एहसास निभाया। ज़िम्मेदारी उनमें था कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ एक मीटिंग आज बुलाया ताकि हर किसी का राय जान सके। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी तरफ से, मेरी ज़ाती राय है, यही कोशिश अगर काउंसिल की तरफ से पहले ही हुआ होता, एक ऑल पार्टीज़ और ऑल रिलीजियस मीटिंग उस वक़्त भी हम करते कि अगर इस चीज़ को हासिल करने में क्या करना चाहिए और हमें क्या करना होगा, रोड मैप अगर हम एक तैयार करते हुए तो हो सकता हमारा जो डिमांड था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन जैसे भी हो, कैसे हो, लेकिन वो नहीं हो पाया जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि आज काउंसिल ने अपनी जिम्मेदारी का मिसाल देते हुए उन्होंने हम सब यहाँ पे बुलाया, जिसमें हम सब मिले इस चीज़ को फाइट करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ और पीडीपी की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी है, चाहे वो हमारी करगिल का यूनिट हो, हम ज़ाती तौर पर भी ऊपर हमारी लीडर्स हायर अथॉरिटी से लेकर नीचे तक हम तैयार हैं इस चीज़ को हासिल करने में। अगर हमें कहीं जाना पड़े, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना पड़े, तो हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं सेमोक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एसोसिएशन का उन्होंने एनर्जी में उन्होंने पिछले कई, मैं देख रहा हूँ ख़ासकर सोशल मीडिया में बिल्कुल पिछले 3-4 महीनों से तो वो ज़्यादा एक्टिव थे, तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। काउंसिल ने हो या हर एक, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी ने कोताही इसमें बरती हो, शायद कोताही होनी भी नहीं चाहिए, तो लेकिन एक चीज़ किसी चीज़ की तो कमी ज़रूर रह गई होगी, जिसमें आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है आज गवर्नर साहब ने उन्होंने ऐलान किया कि ये में हम इसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं।
निहायत ही मैं कहता हूँ इसको हम बिल्कुल इसके हम मुसम्मत हैं कि अगर एक रीजनल बेस पे अगर हम एक यूनिवर्सिटी देनी हो तो लेकिन उसमें हर किसी को साथ लेके चलने की ज़रूरत थी, किसी के आपको सुनने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने शायद जल्दबाजी में ऐसा एक कदम उठाया, तो उसका हम मजम्मत करते ही हैं। और आइंदा आप लोगों को ये दिलाते हैं कि अगर जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी के मसले में, स्टेटस के मसले में LBA ने रोल निभाया, मैं समझता हूँ वो मेरे ख्याल से बड़ा रोल निभाया इस चीज़ में। गवर्नर रिप्रेजेंटेशन ना हो किसी पार्टी की तरफ मुझे कोई देखने जान नहीं मिला, लेकिन में आप देखेंगे जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो LBA की तरफ से था और उसको सपोर्ट था काफ़ी पार्टी से। हमारे यहाँ भी अगर उसी तरह से हमारे जो मजहबी तंजीमें हैं उन चीज़ों को, इश्यूज़ को अगर वो लोग जो ओरिजिनल इश्यूज़ हैं इसको अगर वो लोग उठाएं तो हर एक पार्टी को सपोर्ट करने में कोई कबाहत नहीं होगी। और हम आइंदा भी इंशाल्लाह एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हमें चाहे अपनी कुर्बानी देनी भी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। पार्टी आप लोगों के साथ खड़ा है हमेशा इंशाल्लाह। तो मैं भी इस सजेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो हमारे मजहबी तंजीमों की सरबराही में अगर तंजीम एक कमेटी तश्कील दी जाए तो मैं उसमें हमें कोई वो नहीं है, होता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा हम होशियार रहें। हमारे जो लीडर साहिबान भी हैं, जितने भी लीडरशिप हो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है अब इस इशू को आगे ले जाने में। तो मैं PDP की तरफ से एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी हनीफा साहब ने अभी तजवीज़ दी, कादू गुलजार साहब ने इस पर काफ़ी मुस्तशनीद की, तो मैं उस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि यकीनन आज इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी रीजन का कोई बड़ा मसला हो, जब तक हम सब मिल के जो एफर्ट जब तक नहीं लगाएंगे हमारा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जिस तरह से हाजी साहब ने अभी एक तजवीज़ पेश की कि हमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है, मैं भी उसको सेकंड करता हूँ कि IKMT और इस्लामिया स्कूल दोनों के को चेयरमैनशिप में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जिसमें जितने भी हमारे बाकी मजहबी तंजीमें हैं या सियासी पार्टियां हैं उनसे भी कुछ मेंबर्स लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जाए और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तमाम इन चीज़ों को देख कर थ्रेड पे डिस्कशन करके आइंदा अमल क्या होगा उस पर वो हमें गाइड करे, हमें ऑर्डर्स दे कि किस तरह करना है। तो सब मिलकर हम इस चीज़ को फाइट करने के लिए तैयार हैं। शायद मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो इसके अलावा भी अगर और भी कोई किसी के पास सुझाव है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए ताकि हम उस पर डिस्कशन पे आ जाएं। का हमारा जो इशू को लेकर हम फिर इसी चीज़ों को फॉलो करने के लिए उन्हीं के ख्याल में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई पोलिटिकल उसमें किसी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लिहाजा हमारा भी राय यही है कि बेशक हमारा सपोर्ट हर वक्त उनके लिए चाहिए, जब भी वो जहाँ कहीं भी बुलाए हमें तैयार रहना चाहिए और इनके सरबराही में एक टीम तश्कील दे जिसमें से हर एक तंजीमों से एक एक मेंबर ले। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, इस पर हम भी सहमत हैं। उसमें ये हो जाएगा कि जो मतलब अलग अलग तरीके से करने का, क्योंकि देखिए अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक बैग हो रहा है, वो चीजें खत्म हो जाए। जब तक हम जॉइंटली एफर्ट कर नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम किसी जगह पहुंच पाएंगे। फिर वही पहुंच जाएगा हम एक दूसरे के टर्म। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कल हमें जीत हो गए तो हम जीत गए सब बांट लेंगे, हार हो गए तो सब अपने अगर स्टेट गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो शायद काउंटर करने के लिए जब तक हम सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, हमारा जो दो बड़े मजहबी इदारे हैं उनकी क़यादत में, तो इंशाअल्लाह रहमान सब इनके इसमें मिल के लड़ेंगे तो हमें जरूर कामयाबी हासिल होगी। इससे पहले मुंशी साहब और PC साहबान उलमा किराम सादात एज़ाम जो तंजीम के यहाँ पे नुमाइंदे हैं सबको सलाम करता हूँ। इसमें जो चीज़ें अभी हमारे इस मीटिंग में उभर के आई हैं, सबसे पहले तो हमें ये कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी इन्होंने लद्दाख के नाम पे लेह में दिया है, ये इसका फॉर्मेशन ही जो एक हेस्टीली एक बिल्कुल जल्दबाजी में इन्होंने एक कदम उठाया है, क्योंकि जो अभी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उन्होंने बताया है कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक्चुअली होता है जो नज़दीक के कुछ कॉलेजेस को मिला के एक क्लस्टर बनाते हैं और उनमें PG लेवल के सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये एक अजीब दुविधा है कि लद्दाख में 400 किलोमीटर
के दूरी पर जो कॉलेजेस हैं उनको मिला के आप एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बताते हैं, ये समझने वाली बात नहीं है। और इसका जो आप हेडक्वार्टर बताते हैं लेह में, तो लेह से फिर ज़ांस्कार, द्रास, करगिल ये कैसे कवर करेंगे, ये हमारे समझ से बाहर है। दूसरा जो इसमें हमारा जो मेन मुद्दा हमने जो आज तक हमारे सिग्मोल ने उठाया, बाकी उनका सबका हमारे तमाम तंजीमों का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनको उस डिमांड में हमारा आवाज़ एक था कि हमें एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी दिया जाए। लेकिन अभी ना फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी की बात है और ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो 400 किलोमीटर दूर के कॉलेजों को मिला के बना रहा है। तो हम गवर्नर से अपील करते हैं एसएससी से कि इस को आप नज़रसानी करें और इसको दोबारा गौर करें कि इसमें अगर इसमें एक तो हमें तो बिल्कुल इत्मीनान नहीं है कि जब तक आप एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी लद्दाख के लिए न दें। यहाँ पे नुमाइंदे हैं, सबको सलाम करता हूँ। इसमें जो चीज़ें अभी हमारे इस मीटिंग में उभर के आई हैं, सबसे पहले तो हमें ये कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी उन्होंने लद्दाख के नाम पे लेह में दिया है, ये इसका फॉर्मेशन ही जो एक हेस्टी लिए बिल्कुल जल्दबाजी में इन्होंने एक कदम उठाया है। जो सैटेलाइट कॉलेज ये कैंपस है उसमें भी फालियत बहुत अच्छा है, तो इन सब को मद्देनज़र नहीं रखा गया है जो आपने ये डिसीजन लिया है। तो बहरहाल इसको आगे बढ़ाने के लिए जो आप लोगों ने तजवीज़ यहाँ पे दिया है इसमें कि मजहबी इदारे जो इसमें लीड करें, तो इसमें मैं समझता हूँ इसमें एक हमको दो चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। एक जो हमें शॉर्ट टर्म में करना है अभी इमीडिएटली जो हमें मसला है, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म में जैसे कि हमें खदशा हो रहा है कि आगे हमारे डिविजनल स्टेटस में भी ये मत हो, तो इसमें एक मेरी तजवीज़ तो ये है कि अभी जो इमीडिएटली हम इस मसले को, क्योंकि ये तो एक दो दिन में हमें गवर्नर साहब को और बाकी चीज़ों को हमें बताना है कि हमको ये काबिल कबूल नहीं है और हमारे एस्पिरेशंस के हिसाब से ये होना चाहिए। तो इसमें एक तो अभी हमारे सारे तकरीबन बड़े लीडर्स जो है जम्मू में है और हमारे स्टूडेंट यूनियंस भी अभी सिग्मोल वालों ने बताया कि जम्मू में है उनके लीडरशिप भी। तो एक तो जम्मू में वो लीडरशिप पूरा जाके गवर्नर साहब से बात करें, उनसे मिले जल्दी, और दूसरा यहाँ पे जो हम अभी कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के जो हवाले से जो शॉर्ट टर्म में मेरे समझ में ये आया है कि हम जो अभी काउंसिल ने ये जो इनिशिएटिव उठाया है, तो काउंसिल के अंदर ये हम अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाला इशू उठाएंगे। इसके बाद जो बाद वाले चीज़ों में जो आप लोग सजेस्ट करते हैं, इसमें एक हम सोच विचार करके एक एक्शन कमेटी बनाए जो मसीबी इदारे जिसको लीड करें या जो भी आप समझते हैं तंजीम इसमें मेंबर बने। तो मेरे ख्याल में वो एक लॉन्ग टर्म एक प्लान करके हमें करना पड़ेगा। और अभी जो हमारे सामने जो मसला है इसमें काउंसिल को लीड करके इसको करने की ज़रूरत है। वस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों रियासती गवर्नर जनाब मलिक साहब सत्यपाल मलिक साहब की क़यादत में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीजन लिया जिसमें लद्दाख को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इस्टेब्लिश किया गया। उसके साथ साथ गवर्नर साहब की एक प्रेस ब्रीफिंग आई है जिसमें कहा गया कि हमने लद्दाख के लिए यूनिवर्सिटी लेह में खोला गया है। उस चीज़ को ये देखते हुए आज करगिल में हिल काउंसिल ने अपना जिम्मेदारी समझते हुए करगिल के तमाम मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों को दावत दी कि इस पर गुफ्तशनीद करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अगर लद्दाख की टोपोग्राफी को देखा जाए, लद्दाख की ज्योग्राफी को देखा जाए, दो डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, लेह और करगिल। लेकिन आज तक हमेशा करगिल के साथ नाइंसाफ़ी होती आई है, किसी भी शोबे में हो। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी का डिमांड था, करगिल की पूरी हमेशा से ही डिमांड रही है कि हमें एक फुल फ्लेजेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए।
लेकिन अभी रियासती सरकार ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट की है और उसका भी हेडक्वार्टर ले में रखा है, जिसके हम बिल्कुल साथ नहीं हैं। और साथ में हमें कोई एतराज़ नहीं कि अगर ले को क्लस्टर यूनिवर्सिटी दे, लेकिन साथ में करगिल को एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी दे, जब तक हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड जो हो पूरा हो जाता है। अभी आप देखिए रेशो का, अगर स्टूडेंट्स का रेशो करगिल में ज़्यादा है, इनरोलमेंट करगिल में ज़्यादा है, डिग्री कॉलेजेस करगिल में ज़्यादा है, और शायद गवर्नर साहब ने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर जल्दबाजी में फैसला लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करेंगे और ले के साथ साथ करगिल को भी एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेंक्शन करेंगे। जब तक, मगर ये हमारी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जब तक हमें हमारी जो परमानेंट सोल्यूशन है वो जब तक हमें एक सेंट्रल फुल फ्लेज्ड यूजीसी ग्रांट कमीशन के से जो है जब तक हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, ये हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से ये पूछना चाहते हैं कि किस बेसिस पर आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। सेंट्रल ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मकसद होता है कि 35 से 40 किलोमीटर के एरियल रेडियस में कोई अगर 4-5 कॉलेज फॉल करते हैं तो उनको वो कैटर करें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा एक कॉलेज ज़ांस्कार में है, एक कॉलेज हमारा नुब्रा में है, एक कॉलेज हमारा लेह में है, एक कॉलेज हमारा द्रास में है और एक कॉलेज हमारा करगिल में है। ये कैसे पॉसिबल है कि नुब्रा के बच्ची को ज़ांस्कार में आके पढ़ना पड़े, ज़ांस्कार के बच्ची को लेह में जाके पढ़ना पड़े? ये पता नहीं किस अरेंजमेंट पर किया है। शायद उनको या तो कोई मिसगाइड किया गया है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर जो है इस पर अमल दरामद किया गया है। तो हमारी स्ट्रॉन्गली हम इसको इसके पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और साथ में अभी हमने आज ऑल पार्टीज़ की, ऑल रिलीजियस हेड्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ करगिल के हमने एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई और उसमें हमने एक करारदाद पास किया और गवर्नर साहब से अपील किया कि आपने इस फैसले पर दोबारा नजरसानी करें और दोनों डिस्ट्रिक्ट ज़िलों के मफाद को, मुश्तरका मफाद को मद्देनजर रखते हुए दोनों जगह जो है एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोला जाए। लेह में क्लस्टर यूनिवर्सिटी, करगिल में काउंसिल ने अपना जिम्मेदारी समझते हुए करगिल के तमाम मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों को दावत दी कि इस पर गुफ्तगू करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अगर लद्दाख की टोपोग्राफी को देखा जाए, लद्दाख की ज्योग्राफी को देखा जाए, फैसले पर दोबारा नजरसानी करे और दोनों डिस्ट्रिक्ट ज़िलों के मफाद को मुश्तरका जो है एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो खोला जाए। लेह में क्लस्टर यूनिवर्सिटी, करगिल में क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जब तक हमारे जो परमानेंट डिमांड है फुल फ्लेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड पूरी ना हो। तो आइंदा अमल को तय करने के लिए, आइंदा इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को तय करने के लिए हम लोगों ने एक एक्शन कमेटी भी तश्कील दी है। हमारे जो दो बड़े मजहबी इदारे हैं, इस्लामिया स्कूल करगिल और करेंगे, और करगिल के तमाम सियासी पार्टी, हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, सब मिल के हम इनके पीछे हम खड़े हैं। उनको हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा और हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पर इस इशू को हम फाइट करेंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी को सर, जब आप लोग गवर्नर साहब से मिले थे उस टाइम पे ग्राउंड रियलिटीज नहीं बताया था गवर्नर साहब? बिल्कुल, हमने सारी चीज़ें बताई थी उनको। हमने उनको ये बताया था, जोग्राफी हालात से हमने उनको आगाह किया था, जो हमारे इस वक्त इनरोलमेंट्स है उसके हिसाब से हमने आगाह किया था। अभी आप हमारा जो सैटेलाइट कैंपस है उसके आप देख लीजिए, इस वक्त इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा जो है करगिल का जो सैटेलाइट कैंपस है वो फ्लोरिश हो रहा है। इस बात की तस्दीक पिछली बार जो हमारे वाइस चांसलर साहब आए थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के, वो खुद बता रहे थे कि करगिल कैंपस जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरिशिंग स्टेज पे है इस वक्त पूरे स्टेट में। तो इनरोलमेंट भी ज़्यादा है। अभी इस वक्त तकरीबन कोई 70 हमारे बच्चे जो है जो इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स में इनका आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन रिस्पॉन्सिबल? आवाज़ सुनना पड़ेगा जब पब्लिक चिल्लाएगी, रिजोल्यूशन तो आप लोगों ने पहले भी पब्लिक जब सड़कों पे आएगी, पब्लिक देखिए को मत दे दो। हम बोलते हैं कि भाई हम अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है, और अपने हक के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। सर, सुनने में आया कि सोर्स से पिछले बार में डिविजनल स्टेटस की बात आई थी, जब हेडक्वार्टर की बात आई थी, हमने कहा हम घर की बात है, घर पे इसको हम सुलझा लेंगे। लेकिन शायद स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ सौतेला माँ वाला सलूक कर रहा है और हमें लगता है अभी अगर जिस तरह से अभी यूनिवर्सिटी हमको शक हो रहा है कि शायद डिविजनल स्टेटस में ऐसी चीज का कुछ ये लोग फिर पैंतरा बना के पेश करें, तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा इस चीज को, डिविजनल स्टेटस को क्या हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। इसमें हमने अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी है, एक्शन कमेटी, वो आइंदा इन चीज़ों पर जो है हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी गाइडेंस करेंगे और हमें लीड करेगी और हम सब मिलकर इनको सपोर्ट करेंगे। तो डिविजनल, हमें अब तो खदशा लग रहा है कि शायद डिविजनल स्टेटस में भी यही चीज़ आ जाए। हमें इस चीज़ पर भी सोचना है, अब सोचने की ज़रूरत है।
सर जिस तरह आपने कहा कि आप शायद या लगता है कि आपको आप कमज़ोर हैं और लेके जो मिनिस्टर्स हैं जो काउंसिल है वो स्ट्रॉन्ग है। जी देखिए, हमारी पहुंच जो है स्टेट गवर्नमेंट तक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक है। जहाँ जहाँ जाना पड़े हम स्टेट के जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमारे गवर्नर साहब, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, अच्छा उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हर किसी के पास जाके हम अपने मेमोरेंडम की शक्ल में अपनी फरियाद सुना के आए। उसके बाद जो है हिल काउंसिल करगिल ने तमाम काउंसिलरों को जमा करके इस पर एक करारदाद भी पास किया। पास सब कुछ करने के बाद भी ये चीज़ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधा जाहिर हो रहा है कि करगिल के साथ सौतेला माँ का सलूक किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आम लोगों का यह ख्याल है कि जो करगिल के जितने भी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें, वो आपसी खींचातानी की वजह से। बिल्कुल, हिल काउंसिल का हमेशा से ये रहा है। अभी आप देख लीजिए 2 मेजर पार्टीज का करगिल में कोलिशन हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ? पब्लिक इश्यूज को लेके हुआ है, पब्लिक के डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमेशा जो है एकजुट होकर काम करें। ठीक है, अभी इस ऐसे मुद्दों को लेकर अभी हमने एक एक्शन कमेटी बनाया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक्शन कमेटी आगे तक जाएगा। जो भी हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले हैं, एक्शन कमेटी आगे जाएगी और तमाम तंजीमों का इनको साथ होगा। जब सब तंजीमें मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तंजीम मिलकर इसके हक में जा रहे हैं, तो यकीनन हमें किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ब्लेम गेम नहीं होगा, कोई क्रेडिट पॉलिटिक्स नहीं होगा। आगे भी अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहता है, अगर हमारा आवाज स्टेट और सेंटर नहीं सुनता है, काउंसिल की तरफ से क्या स्टेप होगा सर, जो खासकर यूनिवर्सिटी का जो मसला चला, अगर इसको गवर्नर अगर इसको प्रायोरिटी बेस पे नहीं लेता है? देखिए, इसमें हमने 2 मॉड्यूल्स लिए हुए हैं। एक हमारा शॉर्ट टर्म होगा इमीडिएट, एक हमारा लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अभी हमने क्या किया, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और जितने भी हमारे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो जम्मू में बैठे हुए हैं, वो भी स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेशन में एक प्लेटफॉर्म पे आके ज्वाइंटली वो गवर्नर साहब से जाके मिलेंगे, स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे ये करेंगे। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर काउंसिल लेवल पर हमारा जो अभी एक्शन कमेटी है या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से, रिलीजियस पार्टी से, सब मिलकर इसको एक सपोर्ट करके हमने एक सबका एक एमएलगम बनाया है और इस प्लेटफॉर्म से हम सब मिलकर मुतफ़िक़ तौर पर एक आवाज़ होकर हम अपनी आवाज़ उठाएं। सर सोशल मीडिया में एक चीज़ बार बार ये चीज़ वायरल हो रही है कि लेह में जो है मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर्स है वो लेह में है, इसका क्या बेनिफिट है कि करगिल में क्यों नहीं है? मेरी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स से गुजारिश है कि मेहरबानी वो सोशल मीडिया पर कमेंट्स और अपना वो देने के बजाय अमली मैदान में आके काम करें। देखिए, घर में बुखारी के सामने बैठकर चाय का कप साथ में लेकर मोबाइल पर कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड में आके काम करना बहुत मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि अमली तौर पर आइए, हमारे काफिले में शामिल हो जाए और एक होकर करगिल के लिए काम कीजिए। थैंक यू सर।